माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी। Question 91. Please. This is, no, that we don't. नहीं, देखिए, we have an Rajiv ji, we have an established practice of many years. We adjourn for a sitting member of this house. The other day, a reference was made from the chair over for the passing away of Dr. Balram Jakar. He was also a speaker. But he was not sitting MP. No, sitting MP is for the house. That is an established practice. आप देख लीजिए जी. ने कहा ये बात संगमा साहब जो है वो स्पीकर भी थे और निश्चित तौर से एक बहुत बड़े लीडर थे। तो अगर आप उसमें सहमति दे सकते हैं और उनके सम्मान में हम हाउस एडजर्न कर सकते हैं तो हमें कोई आपत्ति मेरे ख्याल से करना चाहिए। देखिए नहीं, the chair will be asked straight away. Please, हाउस की राय ले लीजिए। Let me explain the position. हाउस की राय ले लीजिए। नहीं, ऐसे नहीं होगा भाई. Somebody will ask the question, why didn't you do it last week? There is an established practice, let us stick to it. Yes, sir. You take Yes, the sir. consent of the house. देखिए, we can't make rules on the run. We cannot make rules on the run. This is not fair. It's being very disrespectful to him. Let us go by established practice. Correct, sir. We support you. Question 91. Mr. Hussain Dalwai. Question let the answer be 91. given. Sir, answers laid on the table of the House. Supplementary. Sir, thank you, sir. Konkan region in Maharashtra is coastal region and large number of people depending on fishery as well as fruit for livelihood. But they find it difficult to pay the right prices from the market because there aren't enough facilities for processing of fishes as well as horticulture product, including for the cold storage and fishes. What steps will taken by the Ministry to increase the number of fishery and fruit processing units in Konkan region of Maharashtra? Thank you. Sir, through you, I'd like to tell the honourable member that the mandate of this ministry is to create the infrastructure and to give certain grants to ensure that this infrastructure comes up. But the model is also such that whenever certain grants have to be given out, an expression of interest is invited. People from all over the country apply for this, and according to the criteria and the eligibility criteria, those people meeting that criteria, it's sanctioned. So I would, through you, like to tell the honourable member that at the moment in his state of Maharashtra, the government has got ongoing number of cold chains, which is 27, and 4 mega food parks have also been sanctioned. As far as in the technology upgradation scheme, which was discontinued now, but earlier before it was discontinued, around 504 units were given grants through the ministry, and out of that for fishery there were 4 people who had applied, 4 units that had applied, so it was given for fishery. For fruits and vegetables, almost 90 units were given a subsidy. So however people apply for whatever they apply for according to their demand, that is what the grant is given. Thank you. Second supplementary. सर ऐसा है कि महाराष्ट्र में खास करके कोकण में बड़े पैमाने पर मैंगो होता है जो सेंसिटिव रहता है, जल्दी खराब होता है। और दूसरी बात ऐसे है कि फिश का प्रोडक्शन भी बड़े पैमाने पे होता है, लेकिन वहाँ एक भी मेगा प्रोजेक्ट नहीं, आपने 4 जो बनाने के लिए बोले, एक भी नहीं। और दूसरा मेरा सवाल है 100% फॉरेन इनडायरेक्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये फूड प्रोसेसिंग पे लाने वाले हैं, ऐसा सुना जाता है। ये क्या सच बात है कि पेप्सी और कोका कोला जैसी कंपनियां उसमें उतरेंगी और पूरा 100% उनको ये दिया जाएगा, सहूलत दी जाएगी, ये सही बात है क्या?
सर तो जैसे मैंने कहा कि ये जो लोग इस सब्सिडी के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हीं को दिया जा सकता है. इट इज़ अकॉर्डिंग टू द पर्सन अप्लाइंग. तो जो आपके एरिया में से कोई अप्लाई करेगा ज़रूर उनको भी कंसिडर किया जाएगा. इट्स नॉट अप टू द मिनिस्ट्री, इट्स अप टू द पीपल हु आर अप्लाइंग एंड हुएवर मीट्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इट्स गिवन टू देम. नंबर 2, रिगार्डिंग द 100% FDI in the marketing of जो अभी आया है for the food processing sector, I would like to clarify here कि ये 100% FDI only for food which is sourced from our country. इसका मतलब कि विदेशी पैसा आएगा लेकिन पूरा स्वदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा. और इससे जो हमारे फार्मर्स को जो यही आप कह रहे हैं कि उधर फ्रूट है, वेजिटेबल है, मरीन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में बहुत बड़ा एक ये एसेट प्रूव करेगा. Just, you have a supplementary? Hi. All right, we'll take it up. Shri Sukhendra Shekhar Roy. Malda in West Bengal is the highest mango producing district in the country. This is a question on Maharashtra. Yes, no sir, this is the reply given by the Honorable Minister relates to the entire country. Relates to the entire country. Yes, I can show. Say, It's Maharashtra specific. Kindly see reply C. Kindly No, see please. reply C. Reply You know C. the intent of the question. No, I have gone through the reply, sir. So I have gone through the reply. Wastage, this thing district Sir, may I quote one line from the reply? May I quote one line from the reply? All right. Yes, the minister has replied that it indicates loss due to wastage in fruits in the range of such and such in the country based on random sampling of production dated so and so in 107 districts, including Maharashtra, from all states including Maharashtra, from all states including Sukhendra Maharashtra. Therefore, Shekhar ji, I no. have a right. No. As a very eminent lawyer, you can find So I fault find the in the reply. writing of the answer, but the intent is very clear. And let the question be answered relating to Maharashtra. You can always raise a question about Sir, any other kindly state. go through C. Kindly go through reply C. I've seen it. I've This seen is the question. I've seen the clear, reply. abundantly clear that it relates to 107 districts of the country. No. 107 districts of the country, Please. including Maharashtra. Let's not. Including Maharashtra. Let's not. What does it mean? If you don't allow, sir, I am not. No. I mean, I want the answer and the question should be specific. If you All don't right. admit, I am sorry. Let me see. Shri Mahendra Singh Mahare. माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तराखंड में सेब और आलू अदरक की अत्यधिक पैदावार है, परंतु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां न होने से किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है. क्या सरकार प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने पर विचार करेगी? सर तो वंस अगेन मैं यही कहूँगी कि हमारे मंत्रालय से जब भी कोई स्कीम सैंक्शन होती है तो एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किया जाता है जहां देश भर से लोग अप्लाई कर सकते हैं. तो जो लोग अप्लाई करते हैं उनको जो क्राइटेरिया जिनका सबसे हाईएस्ट एलिजिबिलिटी होता है उनको सैंक्शन किया जाता है. उत्तराखंड में 15 कोल्ड चेन्स और 2 मेगा फूड पार्क हमारे मंत्रालय की तरफ से सैंक्शन किए गए हैं जिसका काम चल रहा है. इसमें से कई कोल्ड चेन बन चुके हैं, कई ऑनगोइंग है. ये टोटल नंबर है. Shri Anand Sharma, the question on this particular subject. All right. Sir, the minister has, in her answer, said that as per the Central Institute of Post-Harvesting Engineering and Technology, Ludhiana, it indicates the loss due to wastage in fruits in the range of 4.58 to 15.88%. Sir, in this very house and in the other house, the government, the Ministry of Agriculture, has given its reports, and the Agriculture Minister is also here, that the post-harvest losses of India, being the second largest producer of cereals. Come to the question, this particular subject. That the post-harvest losses, first I have doubt about the correctness, because there is a contradiction in what the Agriculture Ministry has reported to Parliament. It is more than 10 to 12% only for the cereals and pulses, and in a range of 33 to 38%. If the data is wrong, please point it out. No, sir. My question, specific question to it is, given the fact that the post-harvest losses is a major challenge In Maharashtra? in all over the country. No, sir, we are not talking of Sir, all over the Maharashtra country. is part of India, sir. Maharashtra is part of India.
Minister has said, sir, please allow me, sir. Please. I'll just conclude. All right. Minister had just said in the House just now about the 100% FDI policy. My specific question, therefore, is that in 2012, FDI in retail, 51% was allowed and notified. Now, whether a new policy has come, has the earlier notification on FDI in multi-brand retail been withdrawn by the government, or are you enhancing it from 51% to 100%? Because she has just informed the House. She has just informed the House. Not part of the question, but I would still like to tell the honourable member that in food processing, 100% FDI through the automatic route is already allowed. The new FDI policy, which has been announced in the latest budget, is to allow 100% FDI in multi-brand marketing of foods grown and processed only in India. The big difference being from the FDI that you were bringing in, that you were bringing it in everything. We have done No, please. This is not a debate. Let me finish. You were bringing it in multi-brand retail of all products. We are bringing it in only in food. And the other big difference being that you were allowing a big chunk to be brought from anywhere in the world. Please, no. Listen. No. 1 minute. It is a fact that Sharma Sahab, please. No. If it is a misleading answer, you know the procedure. It is not to be decided in debate. Please. Is it not a fact that Oh. may I ask? Why is this it not a unnecessary fact- debate? Is it not a fact that only 30% I'm afraid had to you be know sourced from that there within is the no country? point of order in question asked. Only 30% had to be sourced, Pardon? mandatory to be sourced from within No, the country. I'm not. On this I'm new not. FDI policy, 100% The has to be chair- sourced from within the country. No. देखिए शर्मा साहब, this is not correct. Chairman sir. Please. Chairman sir, may I 1 minute. Whether a minister, while Honourable member. replying to a question, can make any allegation against a particular Sir, member. may I correct? This is my point of Okay, order. sir, Chairman Because sir. he is making allegation against the honourable member. Chairman sir, While may replying, I- it cannot be allowed. No. Okay, can I That ask? should be We expunged don't from the have- record. That should be expunged from It the is a record. well established. It will be examined. Sir, Chairman, If that sir, is so. May I be allowed to Yes. rephrase my Please. answer? The earlier FDI allowed things from other countries to be brought in also in India. The FDI, Sharma Sahab, please. Could you please? No. Stop interjecting like this. the FDI. No, I'm sorry. You ask a question. 1 minute, please. If a misleading answer is given, there is a procedure for pointing that out in writing. And then you hold the department or the minister responsible for misleading the House. But this is not to be decided in exchanges. So, sir, No, may I- I'm sorry. I May think I this is just- taking away the right of other members to ask questions. May I just reiterate? Please over here, conclude sir, quickly. That this FDI policy which has been announced in the budget is only for food items grown and processed in India and 100% sourced from India. Shri Amar Sable. महाराष्ट्र में कोकण विभाग में जो आम और मछली ज़्यादा पैदा होती है वो कोल्ड फूड प्रोसेस की कोल्ड चेन वहाँ रहेगी तो वो बर्बाद नहीं होगा। तो खुद गवर्नमेंट वहाँ फूड प्रोसेस की कोल्ड चेन चला सकती है, कर सकती है। इसका जवाब पहले भी दे दिया है कि ये जितने भी वहाँ पे ये दी जाती हैं यूनिट्स वो अप्लाई करना होता है। जो अप्लाई करता है जिस चीज़ के लिए सर तो माइक इज नॉट वर्किंग इधर से तो प्रेस क्या हुआ पास वाला ना हो गया चल सो जो भी अप्लाई करता है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है मार्किंग के हिसाब से उनको दिया जाता है। और जैसे मैंने बताया कि महाराष्ट्र में ऑलरेडी 27 कोल्ड चेन और 4 मेगा फूड पार्क्स, जिसमें से 4 पहले मैंने माननीय सदस्य को जवाब दिया था कि 4 फिशरीज़ के लिए हैं। सो जैसे अप्लाई करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनको सबको कंसिडर इक्वल प्लेटफॉर्म पे किया जाता है। Thank you. Question 92. दिया गया। सर, आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि सूचना अनुसार मुंबई
अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का आरंभिक प्रस्तावित खर्च 98,000 करोड़ रुपए बताया गया। हालांकि रेल बजट 2015-16 में रेल यात्रियों की संख्या में 4% की कमी आई है। यात्रियों से रेल को होने वाली आमद में भी बजट अनुमान से 10% की कमी है। 2015-16 बजट के अनुसार सबर्बन और नॉन सबर्बन दोनों यात्री ट्रैफिक में कमी आई है। लगभग 2 करोड़ यात्री घटे हैं, यानी यात्रियों की संख्या घट रही है, यात्रियों से रेल को होने वाली आय घट रही है, पर इतने बड़े निवेश पर रेट ऑफ रिटर्न या इसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी क्या है? साथ ही सर, बुलेट ट्रेन में पर किलोमीटर कॉस्ट इन्वेस्टमेंट और हाई स्पीड ट्रेन में पर किलोमीटर कॉस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है और कौन सा देश के अनुकूल है? थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसी में उत्तर भी निहित है। इन्होंने कहा कि यात्रियों की संख्या घट रही है, इसका मतलब ये हुआ कि रेल से यातायात जो है रोड या हवाई जहाज की ओर जा रहा है, और इसलिए मैं समझता हूं कि हाई स्पीड रेल उसका एक स्पष्ट उत्तर है। और जैसा चुनावी घोषणा पत्र में, अरे भाई अभी जवाब तो देने दीजिए, आप तो ऐसे घोषणा पत्र में भी हमारी सरकार ने ये बात कही थी, और मैं विनम्रतापूर्वक माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि हाई स्पीड रेल कारपोरेशन मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर बनाने का जो निर्णय लिया गया है, उसमें जापान, जब प्रधानमंत्री जी पिछली बार गए थे तो जापान सरकार ने जो सहायता 81% खर्च में करने की बात कही थी, वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए कही गई, और जो शेष 20% का है उसमें आधा पैसा भारतीय रेल लगाएगी और आधा गुजरात और महाराष्ट्र की सरकार लगाएगी। तो इसलिए मोटे तौर पर जो भारतीय रेल को खर्च करना है वो आने वाले 7 वर्ष में जब प्रोजेक्ट शुरू होगी तो 10,000 करोड़ रुपए खर्च करना है, मैंने एवरेज 1500-1600 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष, और इसलिए उसको भारतीय रेल अपने रिसोर्सेज से खर्च कर सकती है। पहली बात। दूसरी बात, मैं समझता हूं कि वह बहुत देश में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हाई स्पीड रेल भी चले इस देश में, तेज गति से चले, और मुंबई और अहमदाबाद 2 विकसित औद्योगिक नगर हैं, बीच में अनेक ऐसे नगर हैं जहां औद्योगिक विकास हुआ है, और मोटे तौर पर जो खर्च आपने जानना चाहा है तो इस परियोजना में 140 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर का अनुमानित खर्च माना गया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न। सर, मैंने उत्तर पढ़ा, उत्तर में बहुत चीजें स्पष्ट नहीं है। पूरी दुनिया में पीपीपी के तहत चलने वाली बुलेट ट्रेनें घाटे में हैं। रेल विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक हाई स्पीड ट्रेनों से देश के सारे रूटों को कनेक्ट नहीं किया जाता तब तक एक परियोजना का सफल होना मुश्किल है। इससे होने वाले पर्यावरण, नॉइज पॉल्यूशन, विस्थापन के नुकसान अलग हैं और रीजनल इम्बैलेंस देश में अलग है। क्या अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना बनाते वक्त इन मुद्दों पर गौर किया गया है? निश्चित रूप से इन मुद्दों पर गौर करके ही निर्णय लिया गया है, और अभी जब मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर बन के तैयार हो जाएगा तो जो बात 2014-15 के रेलवे बजट में उस समय के रेल मंत्री जी ने कही थी, डायमंड क्वाड्रिलेटरल का अध्ययन भी किया जा रहा है, और फिर उस अनुभव के आधार पर आगे का निर्णय किया जाएगा। मैं समझता हूं कि कार्बन इमिशन भी सबसे कम इसमें होगा, तेज गति से लोग जाएंगे, अनेक उपनगर बसेंगे, औद्योगिक विकास भी होगा और जन आकांक्षा की पूर्ति भी होगी। श्री जयराम रमेश। Has just given a number. My question relates only to the number. He has said that the Ahmedabad-Mumbai train will cost 140 crores per kilometer. The railway estimates, the railway experts have estimated that the per kilometer cost of Ahmedabad to Mumbai, 543 kilometers, is anywhere between 180 to 200 crores per kilometer. So my first question is, this 140 crores per kilometer is a gross underestimate. Secondly, the question that Mr. Harivansh asked, how does this compare with the cost of upgrading into a high-speed train? That question remains unanswered. So I would like to ask the honorable member, as opposed to a bullet train, which costs anywhere between 140 to 200 crores a kilometer, what is the cost of upgrading the existing network, which may be more economical? जग जी, जो मैंने उत्तर दिया था लगभग 140 करोड़ मैंने जिक्र किया था, तो वो सही तौर पर 140 होगा ऐसे मैंने नहीं कहा था। वो लगभग जो आकलन है वो मैंने बताया था, और मैं समझता हूं कि जब वो कार्य पूरा होगा तो सही कीमत भी पूरा देश जान जाएगा। दूसरी बात,
जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसमें स्पीड रेजिंग की जो बात है वो दूसरा विषय है, वो माननीय हरिवंश जी ने जानना नहीं चाहा था। ऑलरेडी दिल्ली आगरा पर वो काम हो चुका है और CSR मैंने कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने अनुमति भी दे दी है। क्योंकि अभी फॉग का सीजन था, आने वाले मैं समझता हूं कि 10-15 दिनों में दिल्ली आगरा के लिए गतिमान एक्सप्रेस या तेज गति से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलने वाली है। और भी ऐसे 8 रूट्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है और जिन पर अध्ययन चल रहा है। एक बार अध्ययन पूरा हो जाए तो वहाँ भी इस रेजिंग ऑफ स्पीड का काम हम शीघ्र करेंगे। श्री अहमद हसन, आपका वो खत्म हो गया ना सवाल? माननीय बुलेट ट्रेन के तुलना में जो अपग्रेडेशन है उसका पर यूनिट कॉस्ट कितना आता है, उसका जवाब ही नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, बुलेट ट्रेन या हाई स्पीड रेल का जो कास्ट है वो मोटे तौर पर मैंने बताया। स्पीड रेजिंग की कास्ट का आंकड़ा मेरे पास नहीं है, मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या जो यात्री घट रहा है रेलवे में, ये बहुत चिंता की बात है, तो इसके बारे में रेलवे ने कोई समीक्षा किया, कोई सर्वे किया? ये मैं पूछना चाहता हूँ, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, एक सवाल पूछिए। वो उसके साथ ही है ये। अच्छा, ऑलरेडी वैसे मूल प्रश्न से इनके पूरक प्रश्न का कोई संबंध नहीं है। आपने कहा कि यात्री घट रहा है, उसलिए मैं हाई स्पीड ट्रेन की तरफ जा रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा, मैंने उनके जवाब में उनके जवाब नहीं कहा। हाँ, और ये सच है जो कि पार्लियामेंट में रखा जा चुका है कि यात्रियों की संख्या घटी है। उसके कई कारण हैं और उन कारणों के विस्तार में मुझे जाने की आवश्यकता नहीं। एक तो हाईवेज की स्थिति देश में बहुत अच्छी हुई है, मैं मानता हूं उसके कारण भी घटा है। दूसरा जो मूल कारण मैं समझता हूं कि रेलवे अंडर इन्वेस्टमेंट की शिकार रही है और आज इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। कई जगह से ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि फेक टिकट लेकर के भी लोग चलते हैं, इसलिए इस बार बजट में बार कोडिंग का इंतजाम हमने बजट में घोषणा की है ताकि फेक टिकट लेकर के लोग न चल सकें। तो उस दिशा में रेलवे उपाय कर रही। खास तौर से उपनगरीय रेलों में संख्या हमारी ज़्यादा घटी है। रिजर्व सेगमेंट में हमारी कोई घटोत्तरी नहीं हुई है। जो दैनिक यात्री चलते हैं उसमें संख्या हमारी कम हुई है और मैं समझता हूं कि मुख्य कारण हाईवेज का बेहतर होना है। श्री जाटिया। सभापति जी, हाई स्पीड ट्रेन के लिए और दिल्ली आगरा जैसा खंड आपने बताया उसके लिए मैं उसका स्वागत करता हूं। आपने कहा है कि ऐसे 8 खंडों पर और इस प्रकार के हाई स्पीड के सर्वे किए गए, वो 8 खंड कौन कौन से हैं वो बताने की मेहरबानी करेंगे तो अच्छा होगा। एक मिनट अध्यक्ष जी, मैं बाकी 8 खंडों का विवरण रखता हूं। नौ गलियारे भी चिन्हित किए गए हैं और उसमें 8 ही आप बता रहे हैं, तो एक सबर कीजिए, सबर कीजिए, कौन सा घटा दिया? थोड़ा सबर कीजिए। एक तो दिल्ली चंडीगढ़ के अध्ययन के लिए कार्य प्रारंभ हो गया, किसी को अभी हाल ही में दिया गया है। Sir, first is Delhi Agra, second is Delhi Chandigarh, third is Mysore Bangalore Chennai, Delhi Kanpur, Nagpur Bilaspur, Mumbai Goa, Mumbai Ahmedabad, Chennai Hyderabad Nagpur and Sikandarabad corridors. Thank you. Question 93. Sir, question number 93. Shri Naik. Yeah. Question 93. विवरण सभा पटल पर रख दिया। Sir, this नीति Aayog has been constituted by removing planning commission,
Especially, they wanted to eradicate the name of Jawaharlal Nehru from the scene. And therefore, What's the question? Question, I am coming to the sir. Sir, agriculture is a state subject. And since independence, several legislations have been prepared by state governments and effectively implemented, including land reforms. So, इस टाइम पे ऐसी क्या जरूरत पड़ी? Why the meeting was called by the Planning Commission or Niti Aayog, whatever it is? Whatever it is, what was the need to call for a meeting of secretaries and other officers for the purpose of deciding a state subject? And how is that the officers who came from the state government, normally who are opposed to any touching of state subject, why this issue has come and why expert committee has been constituted? Is it to allow private sector in our agriculture fields and destroy workers and farmers? Please make it clear. महोदय, नीति आयोग हो या प्लानिंग कमीशन हो, सवाल है कि नियत कैसी है। अब आप किस नियत से देखते हैं, उसको नीति आयोग के रूप में देखते हैं कि या नीति आयोग से, ये आपके देखने का नजरिया। जहां तक दूसरा सवाल है आपका कि क्यों जरूरत पड़ी, आपके ध्यान में होगा कि 204 में स्वामीनाथन कमेटी बनी थी और उन्होंने 201 सिफारिशें की थी। उसके बाद 2007 में किसान आयोग का गठन किया गया, उसमें से 201 बिंदुओं को लिया गया। उन 201 बिंदुओं में से 201 बिंदुओं पर काम पूरा हो चुका है। 201 बिंदु थे जिसमें 192 पर कार्य पूर्ण हो चुके हैं। शेष जो 9 बचे थे उसमें एक बिंदु ये भी था और आदरणीय जयराम रमेश जी ने 2012 में जब आप मंत्री थे, आपकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। इसकी क्यों जरूरत पड़ी, माननीय सदस्य का उत्तर बीच में आप किसी समय दे देंगे तो शायद वो समझ जाएंगे, लेकिन हमसे पहले सुन लीजिए। आदरणीय जयराम रमेश जी ने 2012 में 2007 में जो किसान नीति बनी थी उसमें ये बिंदु था कि किसानों के सशक्तिकरण के लिए परिसंपत्ति सुधार के बिंदु, और उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक कमेटी बनाई और स्वयं इसके अध्यक्ष थे और इस दिशा में आगे बढ़े थे। और आगे बढ़ने के बाद आपने कुछ काम भी किया था इसमें। मैं उत्तर दे रहा हूं उनका उत्तर दे क्यों जरूरत पड़ी। तो उत्तर चूंकि मंत्री आज मैं हूं, मुझको देना है, नहीं तो इसका असली उत्तर ये पहले दे चुके होंगे। उस समय न हम थे न शायद वो थे, तो हम तो पढ़े हैं तो पता चल गया, वो नहीं पढ़े हैं इसलिए पता नहीं होगा, उनको तो बताना जरूरी है। इस पर आपने काम भी शुरू किया और कुछ उसमें सुझाव भी निकाले थे कि लीजिंग प्रतिबंध हटाना चाहिए। लीजिंग पर 12 वर्ष से अधिक समय तक खेती करता है तो मालिक बन जाता है, इसको भी हटाना चाहिए। महिलाओं की भागीदारी, कई प्रकार के आपने सुझाव दिए और परिस्थिति ऐसी बनी कि आगे आप फिर उस काम को बढ़ाने की स्थिति में नहीं रहे। तो फिर जब दूसरी सरकार आई तो आपने जो कुछ किया था उसी को आगे बढ़ाने का काम इस सरकार ने शुरू किया है। और इसमें बहुत साफ है, उत्तर में भी हमने साफ लिखा है कि ये राज्यों का विषय है, भारत सरकार की भूमिका सलाहकार की है और उन्होंने जो शुरू किया था उसी के लिए फिर कमेटी बनी हुई है नीति आयोग के द्वारा। सेम वही उद्देश्य है, वही लक्ष्य है, वही विषय है। और इसमें अधिक किसी के समझदारी में बात नहीं आती है कि ये राज्य का विषय नहीं है तो उसमें समझने वाले का कसूर होगा। ये राज्य का विषय है, भारत सरकार इसमें सलाहकार की भूमिका अदा करती है। और मात्र जयराम रमेश जी का या किसान आयोग का या स्वामीनाथन आयोग का लक्ष्य ये था कि ये जो खेती
स्वयं नहीं कर पाते हैं और दूसरे को खेती के लिए देना चाहते हैं या दूसरा खेती करने वाला लेना चाहता है, लेकिन अपने देश में भय रहता है, अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियम हैं कि हम अपना जमीन देंगे तो हमारा मालिकाना हक समाप्त हो जाएगा। तो ये भय कैसे दूर होगा, इसके लिए आदरणीय जयराम रमेश जी ने राज्यों के साथ बैठक की थी और ये टास्क फोर्स भी, अंतर यही है कि उस समय वो अध्यक्ष थे, इस समय हमारे उस मंत्रालय, ये मेरे मंत्रालय का है भी नहीं, इस बार वो मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो उसके अध्यक्ष नहीं हैं, हक साहब हैं नीति आयोग के, वो उसके अध्यक्ष हैं और उसी काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये सिर्फ किसान की बात है, कृषि की बात है, एक कंपनी वाली बीमारी, इंडस्ट्री वाली बीमारी का भूत यदि किसी पर सवार है तो उस भूत का कसूर होगा, उस व्यक्ति का कसूर होगा। इसमें इसका कोई कसूर सेकंड सप्लीमेंट्री इन्होंने if it is unparliamentary it will be expunged. Okay, then if और कंपनी का इससे कोई लेना देना नहीं है। यदि किसी के माथे पर ये सवार है तो उसका कसूर हो सकता है। मैं किसी सदस्य के लिए नहीं बोल रहा हूँ। Perhaps a better expression could have been used. देश में सर ये बहुत लोगों के दिमाग पर ये बात सवार है। नहीं, देखिए मंत्री जी बैठ जाइए प्लीज, उनके लिए बोल रहा हूँ। प्लीज भूत जो है हर जगह ले जाना। Let us confine ourselves to parliamentary expression. का समस्या है, इसका इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। Please, all right, second supplementary. This is not a time for making speeches. Second supplementary, please. Please, बैठ जाइए। मेरा बहुत साफ है। मैं सहजोई को नहीं बोल रहा हूँ। त्यागी जी बैठ जाइए। बहुत लोगों को ये भूत सवार है इंडस्ट्री का। I think honorable minister, शंका जो कहिए, honorable minister, लगता है तो आप शंका सब honorable minister, लेकिन honorable minister, इस भय से, honorable minister, इस भय के कारण जो will you please sit down now? Please, please. देखिए, question hour is not an occasion for making speeches. You answer questions. That's all. Please. No, please. Mr. G, please. We'll take care of that. If any unparliamentary expression has been used, it will be examined and withdrawn. Yes, the word is expunged. Because, second question, please. Sir, my second supplementary is, sir, किसानों को कत्ल करके, मार के, ये घोस्ट को अपने फार्म में घोस्ट को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। घोस्ट इज नॉट अनपार्लियामेंट्री। एक घोस्टों को आप अपने खेतों में क्यों ला रहे हो, ये बताइए। ये प्राइवेट सेक्टर का घोस्ट क्यों रह रहा है? आप सिवा आप what is the question? क्वेश्चन इज, आप ये जिन्होंने पता है कंसल्टेशन करेंगे, विलेजेस में कंसल्ट करेंगे क्या? तालुका लेवल पर कंसल्टेशन हो जा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंसल्ट, कहाँ कंसल्टेशन होगा? अब कब कंसल्टेशन शुरू हो जाएगा ये घोष लाने के लिए? फिर कहूंगा कि ये जो टास्क फोर्स है जो आदरणीय जयराम रमेश जी के समय आज बना है, इसका मूल उद्देश्य है It is not relevant what he did. Please answer the question. किसान और खेत से इसका संबंध है। इस संबंध में किसी को भी देश में यदि शंका है या भूत शब्द यदि असंसदीय है तो पूरे देश के अंदर किसी को भी शंका है, मैं भूत नहीं बोल रहा हूं, शंका सवार है तो वो हटना चाहिए। और जहां तक किस स्तर पर राय करने की बात है, राज्य के जो कृषि अधिकारी हैं उनके साथ बात करने का है, क्योंकि राज्य का ये विषय है। तालुका और ब्लॉक लेवल पर तो फिर उनका काम बनता है। हम तो राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ टास्क फोर्स बैठने का काम Thank you, Shri Reddy. Raja. Sir, a few days back, in the very same house, a serious concern was expressed about the transfer of agricultural land
for non-agricultural purposes. A question was also asked to the government whether government has evolved a land use policy in consultation of the state governments. But in the meantime, the government tells the House and the people that government has constituted an expert committee and working on a model land leasing bill. What is the purpose of this bill? Are you under some pressure from corporate houses, big business houses? Make it clear, be truthful to the country and the parliament. What is the purpose? Thank you. मैं समझता हूं कि सदन में जो विवरण पटल पर रखा जाता है, कोई भी माननीय सदस्य जब पूछते हैं तो उसको जरूर पढ़ते होंगे, और इसमें बहुत साफ साफ लिखा है कि संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 18 के अनुसार भूमि और इसका प्रबंधन विषय राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है। भूमि सुधार के क्षेत्र में केंद्र सरकार की भूमिका केवल सलाहकार की होती है। ये साफ साफ हमने सभा पटल पर रखा है। और दूसरा कि खेती, जो किसान खेती नहीं करता है, दूसरे किसान को खेती करने के लिए जमीन देने में डरता है, इसलिए 12 लाख हेक्टेयर जमीन देश में खेती योग्य पड़ा हुआ है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून हैं, तो उसमें एक रूपता लाने के लिए और ये भय दूर करने के लिए कैसे कानून राज्यों को बनाना चाहिए, इस पर बैठकर बातचीत करने का काम आदरणीय जयराम रमेश जी ने शुरू किया था, और फिर नीति आयोग कर रही है। No, Mr. Raja, Shri Ahmed Patel. स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के बारे में उल्लेख किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो 201 सिफारिशें थी उसमें से 192 सिफारिशें पे काम हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के बारे में कि रिपोर्ट 100% इन टोटो एक्सेप्ट की जाएगी और किसान जो खर्च करता है अपनी खेती पे, वो बात करने के बाद 50% मुनाफा किसान को मिलेगा, तो क्या ये वादा प्रधानमंत्री जी का पूरा किया जाएगा? ये प्रश्न इससे जुड़ा नहीं है, फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि जो स्वामीनाथन आयोग के सिफारिशें थी और जो 9 बिंदु लागू नहीं हुए थे, एक की चर्चा तो आप सुन रहे हैं कि उस दिशा में आपकी सरकार भी बढ़ी थी और हम भी बढ़ रहे हैं। और जो दूसरा विषय आपने उठाया प्रधानमंत्री जी के भाषण का, हमारे घोषणा पत्र का, उसमें बहुत साफ है कि किसानों का लागत बढ़े, यही हमारे घोषणा पत्र में है। और उस दिशा में हमने काम किया है। हमने काम किया है कि इस देश के अंदर जो लागत मूल्य है किसान का वो कम हो, और इसके लिए कौन कौन सी योजना चलाई है उसकी चर्चा के लिए कोई अलग दिन रखिए। दूसरा कि उसको उच्च पैदावार के रोपण सामग्री और बीज प्राप्त हो, इस पर भी चर्चा करना है तो कोई दिन रखिए। और तीसरा काम किया है राष्ट्रीय कृषि मंडी की अच्छा मूल्य उसको मिले, और चौथा काम समय समय पर समर्थन मूल्य बढ़ाने का। ये चारों ऐसे विषय हैं कि चारों विषय पर आप 4 दिन अलग अलग चर्चा करिए, सरकार तैयार है, आपको पता चलेगा कि हम किसानों का लाभ बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं। Thank you, Dr. Mungekar. Honorable Minister is saying that there is 12 lakh hectares of land which is not under cultivation at this point of time. Now the question is, they are talking of cooperative federalism. This is the fraud on the Indian Constitution because they are creating windows slowly to encroach upon the state subject. The question is, this will result straightway to the corporatization of the agriculture. The land under food cultivation is declining. Under this condition, the government, UPA government has passed National Food Security Bill. Land, since already is declining from the food cultivation to the non-food cultivation and non-food crops, what will be the implications of such kind of legislation, if at all you make, by creating the window for the national food security, which is the historical scheme introduced by the UPA government? मैंने पहले भी कहा, और महोदय जरूर किसी न किसी गांव से संबंध होगा, कि गांव में मेरा पूरा परिवार लोग, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं कि हम पूरा परिवार शहर में चले आए। मेरे पास 1 एकड़ जमीन है। हम गांव में किसी को खेती के लिए इसलिए नहीं देते हैं कि उसमें 12 साल तक, या कई कई राज्यों में अलग अलग कानून है कि यदि उसके कब्जे में रह गया, वो खेती करता रहा, तो हमारी मालिकाना हक समाप्त हो जाएगा। इस भय से खेती योग्य जमीन में जो खेती नहीं हो रही है, इस भय को दूर करने के लिए हर राज्यों से बात हो रही है। पहले भी सरकार ने की
कि कौन सा तरीका निकले कि ये जो जमीन है इसकी भी खेती हो सके। इसका लक्ष्य सिर्फ इतना ही है। Question 94. 94 सर। अध्यक्ष महोदय रख दिया गया। Sir, under civil law, compensation is assessed on the basis of age, monthly earning, and status as a victim. Whether railway applies such formula or not. अध्यक्ष महोदय, सिविल लॉ के हिसाब से रेलवे ने कानून नहीं बनाए हैं। समय समय पर इन कानूनों में बदलाव हम करते रहे हैं और रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल्स में आज दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के लिए 4 लाख और घायलों के लिए 32,000 से लेकर के 4 लाख तक का कंपनसेशन देने का रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल ने फैसला किया हुआ है। अभी गंभीरता से हम विचार कर रहे हैं और उस प्रक्रिया में है। आगे जो फैसला होगा माननीय सदस्य को सदन को अवगत कराएंगे। दूसरा प्रश्न। Sir, my first question has not been answered. Let me go for a second supplementary, sir. Railways are discussing with public and private companies for insurance of the rail passengers. I would like to know the basis of discussion whether passenger will bear the burden of insurance charges and can avail the option to get himself insured for higher amount. में रेल मंत्री जी ने उसका जिक्र किया है और 7 बीमा कंपनियों से रेलवे अधिकारियों की बातचीत हुई है, जिसका विवरण अभी उपलब्ध मैं नहीं करा सकता, लेकिन एक बार फैसला हो जाएगा तो रेल यात्रियों के लिए वो ऑप्शनल होगा। टिकट के साथ चाहें तो बीमा क्लेम के लिए भी प्रीमियम भर के अपना बीमा ले सकते हैं। विवरण जब पूरा विस्तार से बन जाएगा तो वो सदन को बताया जाएगा। श्री मोतीलाल वोरा। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि रेल मंत्रालय ने प्रश्न का उत्तर अगर देखें, उच्च स्तरीय सुरक्षा समिति काकोडकर समिति ने सरकार के अधीन और भारतीय रेलवे बोर्ड से स्वतंत्र रेल सुरक्षा प्राधिकरण स्थापित करने की सिफारिश की। माननीय सभापति महोदय, खाली काकोडकर समिति नहीं, अनेक कमेटियां बनी और अनेक कमेटियों ने अपने रिकमेंडेशन दिए। लाखों रुपए हर कमेटी पे खर्च हुए और रिकमेंडेशन आ जाने के बाद में रेल मंत्रालय का ये कहना है कि हमने उसे स्वीकार नहीं किया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि एक के बाद एक कमेटी बनी, काकोडकर कमेटी आखिरी कमेटी बनी, उसके पहले 4 कमेटियाँ और बन चुकी और चारों कमेटियों ने अपने रिकमेंडेशन में जो मुआवजा देने की बात कही, उनका कहना था कि रेल मंत्रालय के सिवाय अलग से एक बनाया जाए और उसके आधार पर रेलों के जो मुआवजा मिलना वो मिले। मैं माननीय मंत्री जी इतना जानना चाहता हूँ, आखिर कमेटियों के गठन के पीछे रेल मंत्रालय का जो उद्देश्य था उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। दूसरी बात, 579 आपने कहा कि 579 मामले अभी भी लंबित है। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि माननीय सभापति महोदय, मानवीय आधार पर अगर इस बात को देखें कि आज से 4 साल 5 साल पहले जो रेलवे के एक्सीडेंट हुए वो क्लेम करते करते थक गए। ये 579 मामले कितने वर्षों से लंबित हैं और कौन कौन से वर्ष के लंबित हैं? क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात की जानकारी देंगे? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अत्यंत वरिष्ठ और अनुभवी सदस्य हैं। काकोडकर समिति का जब गठन हुआ था, मैं समझता हूं कि काफ़ी वर्ष हो गए और काकोडकर समिति की संस्तुतियों को लागू न करने का दोष मैं समझता हूं कि केवल हम या हमारी सरकार नहीं वहन कर सकती। अनेक रेल मंत्री जी लोग हुए जो उस समिति की सिफारिशों को नहीं लागू कर सके और ये फैसला उसी समय रेलवे ने किया कि चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इस काम को कर रहा है और ठीक ढंग से कर रहा है। इसलिए ये 2 और कमेटी काकोडकर कमेटी की जो 2 संस्तुतियां और हैं, रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी एंड रेलवे रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी पहले का निर्णय है। मैं समझता हूँ कि उसमें दूसरी जो जानकारी माननीय सदस्य ने जाननी चाहिए है कि 579 ये ठीक है,
कि रेलवे ट्रिब्यूनल्स देश भर में फैले हुए हैं और कई रिक्तियां भी हैं। वो एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है और निश्चित रूप से समय समय पर हमारे बोर्ड से निर्देश जाता है और जनरल मैनेजर्स को ये निर्देश दिया जाता है कि जैसे ही कोई इस तरह की घटना होती है 15 दिन के अंदर दुर्घटनाग्रस्त परिवार को सूचना दें और तीव्र गति से कार्रवाई करें। लेकिन कानूनी प्रक्रिया में विलम्ब होता है, बावजूद इसके हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसका निपटारा हो। जिन 579 केसेस का विवरण माननीय सदस्य ने मांगा है कि कब कब के वो मामले हैं, तो लिखित उत्तर में माननीय सदस्य को दे दूंगा कि कौन केस कब से पेंडिंग है। श्री परवेज हाशमी। कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, उसमें कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं और कितने लोगों को कंपनसेशन दिया जा चुका है और कितनों का अभी तक बैलेंस है। पिछले 2 वर्ष के 3 साल के सर 3 साल के 12-13 में 123, 13-14 में 118 और 14-15 में 135 ये एक्सीडेंट के आंकड़े हमारे पास हैं। 15-16 में अभी तक जो आंकड़े हैं वो 100 दुर्घटना के हैं। डेथ फिगर्स के बारे में आपने जानना चाहा है तो एग्जैक्ट संख्या मुझे पूछ के बतानी होगी। अगर एक भी गलत मैं बताऊंगा तो वो दूसरी बात हो जाएगी, इसलिए मैं लिखित रूप से आपको कितने लोगों की मृत्यु है वो भी मैं बता दूंगा। जो कंपनसेशन पिछले 3 वर्षों में दिया गया है क्लेम ट्रिब्यूनल्स के हिसाब से 12-13 में 318.85 लाख, 13-14 में 149.22 लाख, 14-15 127.48 लाख और 15-16 में अभी 115 लाख पेमेंट किया जा चुका है क्लेम्स ट्रिब्यूनल के द्वारा। कितनी कैजुअलिटीज हुई, कितने कंपनसेशन दी गए, कितने पेंडिंग है, ये तो आपने ये बता दिया कितना रुपया दिया गया, कितने लोगों को दिया गया। मैंने आपको बताया तो लिख के भिजवा दीजिए कितनी दुर्घटना हुई है। डेथ टोल्स के बारे में मैंने फिगर नहीं बताई और आपको कहा कि लिख करके दे देंगे। ठीक है, आपको दे देंगे वो। क्वेश्चन 95। सप्लीमेंट्री प्लीज। अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना के पुनरुद्धार के लिए सरकार के द्वारा एक नई स्कीम तैयार की जा रही है, PMFBY। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से बड़ा स्पेसिफिक सवाल है कि किसानों के प्रीमियम के बोझ को कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? महोदय, देश में फसल बीमा योजना पहले से चल रही थी और उसके अंदर प्रीमियम का जो दर था वो 15% तक था और अलग अलग जिलों में अलग अलग रेट थे, अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग रेट थे। नई जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई है उसमें अब पूरे देश में हर जिला के लिए एक प्रीमियम रेट रखा गया है। रबी के सीजन में जो भी फसल होगा उसके लिए 1.5% और खरीफ के सीजन में जो भी फसल होगा उसके लिए 2.5% का प्रीमियम निश्चित किया गया है और शेष रकम की भरपाई राज खजाने से की जाएगी। दूसरा प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहता हूं कि दावा के निपटारे के लिए समय सीमा और शीघ्र और समय सीमा के अंदर दावा का निपटारा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? पहले राज्य सरकार के जो पटवारी और लेखपाल होते थे 3 महीना के अंदर वो आकलन करके भेजते थे। नई व्यवस्था में अब उन सबको स्मार्टफोन मुहैया कराया जाएगा और ऑनलाइन द्वारा उपज आंकड़े सेंट्रल सर्वर पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे अब बीमा कंपनियों को फसल उपज आंकड़े 1 माह के अंदर प्राप्त हो जाएंगे। श्री बलविंदर सिंह। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मैं आपके जरिए ये जानना चाहता हूँ, स्कीम तो बहुत अच्छी है, धन्यवाद करते हैं, पहले से बहुत सुधार हुआ है, लेकिन 2 पॉइंट और है। एक तो जो विलेज यूनिट है, क्या उसको विलेज यूनिट की बजाय इंडिविजुअल फार्मर यूनिट पर आएंगे? सेकंड, जैसे जो लॉस है, हेल स्टॉर्म है, पेस्ट है, ये कहीं पड़ जाता है एक खेत में नहीं,
इसलिए मैं ये आपके जरिए माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस स्कीम को और ठीक करने के लिए विलेज यूनिट की बजाय इंडिविजुअल फार्म को यूनिट बनाया जाए ताकि हर किसान को इसका फ़ायदा हो। और सेकंड जो प्रीमियम है इसको और कम किया जाए, पहले से किया है लेकिन और कम किया जाए, जो भी किसान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। महोदय, स्थानीय आपदाओं के लिए अब इकाई को खेत स्तर तक कर दिया गया। जी, कर दिया गया। Yes, Shrimati Viprap Thakur. थैंक यू सभापति जी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या वो किसान जो जमीन लीज पे लेता है, क्योंकि उनके पास अपनी जमीन नहीं होती, वो 5 एकड़ 2 एकड़ या कुछ वो जमीन लीज पे लेता है, क्या उसकी फसल का भी बीमा किया जाएगा? क्या उसको भी इसका फायदा हो सकेगा? क्योंकि ज्यादातर किसान जो सुइसाइड कमिट कर रहे हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, विशेष करके पंजाब में। तो मैं ये जानना चाहूंगी, क्या आप उन लोगों को भी, क्योंकि जमीन उनके नाम में नहीं है, लीज पे ली है, उसके लिए वो बीज भी लेते हैं, फसल भी उगाते हैं, उनकी फसल खराब हो जाती है और उसका उनको कंपनसेशन या कुछ नहीं मिलता, क्या उसको भी आप लेंगे? इस प्रकार के अलग अलग राज्यों में बने हुए हैं जिसके कारण इसका लाभ उनको नहीं मिलता है। हमने सभी राज्यों से जो प्रश्न संख्या 1 था, जिसमें इंडस्ट्री का शंका बड़ी तेजी से हमारे सर पर सवारी कर रहा है, वो इसीलिए किया जा रहा है कि ऐसे किसानों के लिए ऐसी लैंड लीज पॉलिसी बनाइए कि बीमा का भी लाभ वैसे किसान उठा सके। इसीलिए जयराम रमेश जी ने जिस काम को शुरू किया था उसको हम तेजी से लागू करने जा रहे हैं, इसके चर्चा करने जा रहे हैं। लैंड लीज पॉलिसी राज्य सरकार ठीक करे ताकि इसका लाभ किसानों को मिले जो लीज पर जमीन लेकर खेती करते हैं। The message is continuity. श्री रापोलो, इंडस्ट्री की बात की है, मैं उन किसानों की नहीं, बात कर आपके रही हूँ। खत्म हो गया। नहीं रापोलो जी, नहीं please, सर नहीं, please. इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। मैं फिर जवाब आपको दे रहा हूं कि जो किसान लैंड लीज पॉलिसी राज्यों में इस प्रकार की है कि जिसके कारण उन किसानों को बीमा का लाभ नहीं मिलता है। हम इस टास्क फोर्स के माध्यम से सभी राज्यों से बात कर रहे हैं कि लैंड लीज पॉलिसी इस प्रकार का करिए कि इसका लाभ वैसे किसानों को भी बीमा का मिले। श्री रापोलो। Respected Chairman, hey Ram, Jai Ram Ji ki. This is the era of video doctoring technology. Now, the union government is keeping lot of hopes on the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana to cater to the welfare of the agrarian sector. And they have worked out an elaborate insurance program by combining several existent insurance schemes. In that, they tried to keep 25% to the sowing and 25% to the mid-season adversity and remaining to the crop cutting estimates. To have, and I also appreciate to identify village as the unit in insurance decision. At the same time, whether union government in consultation with the state governments planning to involve agricultural extension official mechanism and revenue mechanism to give larger scope to the insurance claims and not to fall prey to the private insurance companies. Thank you. महोदय, हमने स्थानीय आपदाओं के लिए खेत जो सबसे नीचे की इकाई हो सकती है वो तय किया है, लेकिन माननीय सदस्यों को ये बताऊं कि राज्य सरकार और संघ शासित क्षेत्रों के द्वारा तय किए गए इलाके में तय की गई फसल जो कि अनाज, खद्दान, तिलहन, सालाना, व्यावसायिक और बागवानी फसल हो सकती है, उगाने वाले किसान बीमा करा सकते हैं। ये इलाका कौन होगा, अनाज कौन होगा, ये राज्य सरकार नोटिफिकेशन करती है और फिर टेंडर करके कौन बीमा कंपनी वहाँ काम करे ये राज्य सरकार करती है। मैं इसके फायदे की चर्चा आपसे करना चाहूँगा कि पहले किसान के बुआई के बाद जब फसल निकलता था तब आपदा के बाद उसके बीमा का क्लेम मिलता था। इस नई योजना में
बुआई यदि किसान नहीं कर पाया, तैयारी की और बुआई नहीं किया आपदा के कारण, तो उसको भी बीमा भुगतान करने की कुछ व्यवस्था की गई है। पहले कटाई के बाद यदि किसान फसल खेत में काटा और खेत में पड़ा हुआ है तो उसका बीमा का भुगतान उसको नहीं होता था। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि कटाई के बाद 14 दिन तक, ध्यान में होगा, कटनी करते हैं धान का, 5 दिन 7 दिन खेत में छोड़ते हैं, उसी में फिर उसको अनाज निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले से व्यवस्था नहीं थी कि कटाई के बाद यदि खेत में पड़ा हुआ है और आपदा आ गई तो उसका बीमा किसान को मिले। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि 14 दिन तक भी यदि खेत में पड़ा हुआ है तो उसका भी बीमा किसान को दिया जाएगा। और इसीलिए हम और आप और पूरा देश मान रहा है कि किसानों के राहत के लिए अब इससे बड़ी योजना नहीं हो सकती, लेकिन राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग और राज्यों ने रुचि दिखाई भी है, प्रक्रिया कई राज्यों ने शुरू की है और इसको प्रारंभ करने के पहले 1 साल तक राज्यों से काफी विचार हुआ है और सभी भेदभाव आपसी जुड़ाव से अलग हटकर मैं समझता हूं कि राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों इसके लिए बड़ी तेजी से काम कर रही है कि किसानों की कई समस्या जिसकी भी चर्चा की गई, आत्महत्या वगैरह, ये यदि समाधान करना है तो इस योजनाओं को तेजी से क्रियान्वित करना होगा, कंजूसी नहीं। Question 96, please let make a proposal to दिया जाता है किसानों का। Shri Ramchandra Rao, now please raise your question. Let the answer be given. Honorable sir. Ji, bas. Many okay. of may be not aware now that. Let the answer be given first. Question 96. हाँ, अब आप प्रश्न पूछिए। The Honorable Chairman sir, many of us may be not aware that the chili farmers of Andhra Pradesh are illiterate, and most of them, most of the chili growing areas are very backward areas. Sir, in this background, the farmers won't be knowing the fluctuations of the markets, and they are not experts in marketing their commodity. Sir, in this regard, can I ask the minister if alternative usage of the chilies, such as using the chili in dyes, such as using the chilies in chemicals, these kind of agro-based industries, if they are developed, and the chilies are also used in pharmaceutical industries, and if these industries are developed to support the chilies in the distress time, it will help the farmers. Will the minister consider this request? Thank you. Thank you. महोदय, वैल्यू एडिशन के लिए कई प्रकार की योजनाएं चल रही है, प्रोसेसिंग की भी कई योजनाएं चल रही है, और मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा कि एक गांव का पूरा इलाका वो हरे मिर्चे की खेती करता था और वहाँ पर बाद में लाल मिर्चा में डाइवर्ट करके एक पाउडर बनाने का उसमें प्लांट लगाया गया और जिस गांव में 100 लाख की आमदनी होती थी साल में, पूरे एरिया में सिर्फ मिर्ची की खेती होती थी, वैल्यू एडिशन के बाद उसको 13 लाख सालाना की आमदनी उस गांव की बढ़ गई है। तो सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है। वैल्यू एडिशन के लिए हम कई प्रकार की सहायता कर रहे हैं, प्रोसेसिंग के लिए भी हमारा प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के द्वारा और हमारे मंत्रालय द्वारा भी सहायता दी जा रही है। थैंक यू। दूसरा प्रश्न सर जी। There was a proposal. 1 minute, please. 1 minute. सर, क्वेश्चन आवर को आधा मिनट रह गया, 1 मिनट रह गया। सर, ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रिक्वेस्ट आपसे करना चाहते हैं। सर, मैं let me finish, sir. All right, we'll do it immediately after the question. Sir, the chilies, they are not, sir,
Are the ministry is thinking of giving any warehousing facilities? I'm afraid question hour is over. The before I adjourn the House, yes, Honourable Leader of Opposition. I understand that a large number of members, and there's a broad consensus that because of the sad demise of Mr. Sangma, they will want to go to his residence to pay tributes to him. So would the chair consider dispensing or postponing the after lunch sitting today? There seems to be... Ji. I think the leader of the house is very correct, not that the honorable members would like to participate in last rites, but also being a cabinet minister for a long time, chief minister and the speaker of the other house, and more so from the maybe the northeastern state, one of the tallest leaders in the recent past. I think it will be appropriate that after 1 o'clock we just call the day as a mark of respect. Yes. Sir, if the leader of the House and the leader of the opposition, both of them concur with this sentiment, I would also request you to please consider this this request, because he unfortunately passed away in Delhi. And therefore, the body is there. It will be taken there, but I think before the body is flown out of Delhi to pay respects, there's a strong feeling, sir. So what is the suggestion? A longer lunchtime? I'll make the suggestion. Sir, let me complete. Today, I would suggest, sir, the private member's business be postponed for another day, and then we can adjourn. All right, I've got the sense of... but just 1 minute. I would like to inform the members, those who are not aware of it, and put it on record, that our practice in this house has been to adjourn when a sitting member passes away. Correct, sir. Now, actually the original practice was when the funeral of the former member or sitting member is in Delhi. That was diluted over a period of years. I won't go into it, although Dr. Gill is not in the House, has made a proposal which is pending before some committee or the other, that we should go back to the old practice, because the intent was to enable members to participate. Now, all I would like to know from all sections of the House is, yes, we all have very great respect for Sangmaji and his teacher. But he was a sitting member of the other house. This house. Yeah, No. He's a member here. Other house. Lok Sabha. No, if he's a member of this house, then the question does not arise. Of the other house. No, that's the point. What I was trying to say was that we do it for a sitting member of our house. Now, if we are going to deviate from it, is this a one-time deviation? Because only the other day, I think a few days back, I read a reference from the chair for a former speaker of Lok Sabha. That is the late Dr. Balram Jakhar. So I don't want different practices to become the norm. If we are doing it, no, he's not. Are we doing it as a very special gesture over and above our practice? Consider it as a one-time case, particularly because he passed away in Delhi. His body is likely to be taken to Meghalaya, and is a very important leader of the country, and a number of members may want to visit his residence to pay last respect to him. Thank you very much. All right, that is the sense of the House, so we will do it. In other words, we will not reconvene after lunch. Is that the suggestion? Huh? Yes. Afternoon business can be postponed to other day. Postponed to? Other. Next private members. Well, we'll examine that, because if a process has already started for the next Friday, then
we cannot automatically transfer this Friday to next Friday. No, not But Friday. I'll ask the Secretariat to examine. Next available working day or any other day. What Mr. Raja means that let it not lapse. That's That what. it does not collapse. Exactly. All right, let that be examined and be done. Thank you very much. Ji, all right. House stands adjourned Till Tuesday, 11 o'clock on Tuesday, the 8th of March.